everyone. So in continuation of the normal Doppler umbilical artery Doppler, which I've already discussed in my episode number 8, we'll be now discussing this uterine artery Doppler changes. That normal uterine artery Doppler was like this, right? The SND diameter was systolic and diameter was and should be always less than 3. Now we're going to discuss that what will happen and what will be our Doppler conditions in our PIH, that is your pregnancy-induced hypertension. Now, what happens in PIH is there are two conditions that are happening. In PIH is pregnancy-induced hypertension. You have already two things. The first thing is that आपकी प्लासेंटा में रेजिस्टेंस बढ़ जाती है. जब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, ये पहला नंबर फैक्टर है. That will happen. This is one of the change that will happen. If the resistance in placenta increases, ultimately प्लासेंटा में रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से अम्बिलिकल आर्टरी में भी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा. रेजिस्टेंस बढ़ गया मतलब प्रेशर बढ़ गया. प्रेशर बढ़ गया मतलब वॉल्यूम कम हो गया. दैट मीन्स द अमाउंट ऑफ ब्लड नाउ अम्बिलिकल आर्टरी वुड लव टू टेक फ्रॉम फीटस टू द प्लासेंटा बैक, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो कम होता जाएगा. पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट, इन प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन देयर विल बी सम vasoconstrictors in the maternal blood that will be easily able to pass and will work on umbilical artery, because as we have already discussed, umbilical artery is having one characteristic, that is कि उसके पास अपनी nerve endings नहीं होती. वो vasoconstrictor vasodilator से react होता है. जैसे प्रोजेस्टेरोन से react हो रहा था, वैसे ही vasoconstrictor से react होगा. क्योंकि पहले अब रेजिस्टेंस बढ़ गई है प्लासेंटा की वजह से, अब रेजिस्टेंस बढ़ गई है बिकॉज ऑफ द वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर्स जो हमारे पास ब्लड में है. बिकॉज ऑफ दिस क्या होगा कि अब हमारे पास रेजिस्टेंस और बढ़ जाएगी. रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, प्रेशर और बढ़ जाएगा. प्रेशर बढ़ जाएगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा. नाउ व्हाट मीन्स कि आपके पास जो ये ग्राफ था कि सिस्टोल में तो जा रहा था बिकॉज ऑफ योर कार्डियक पंप, वेरी गुड, बट डायस्टोल में क्यों जा रहा था? बिकॉज ऑफ द पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस, कि वो कम होती है तभी डायस्टोलिक का बढ़ता जाता है इन प्रेगनेंसी. इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस, यू हैव टू सी माय प्रीवियस वीडियो ऑन नॉर्मल यूट्राइन आर्टरी डॉपलर. ठीक है. नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो प्रोग्रेशन आ रहा था अभी अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि ये वाला तो सेम रहेगा ना सिस्टोल, बिकॉज ऑफ द कार्डियक पंप. चेंजेस आ रहे हैं डायस्टोल पे. तो PIH की हिस्ट्री में जब प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन होता है तो हमारे पास सबसे बड़ा चेंज यही आता है कि बिकॉज पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, एज रिजल्ट हमारे पास हमारा डायस्टोल कम होता जाता है, जिसकी वजह से हमारा SND डायमीटर का क्या हाल होगा? ये बढ़ जाएगा, क्योंकि D कम हो रहा है तो SND रेशियो विल बी इंक्रीजिंग, विल नॉट बी लेस देन 3 देन. अब यहाँ पे हमारे पास प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन में मार्कर वुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 3, and that is a marker for uteroplacental insufficiency. Uteroplacental insufficiency क्या होती है? It is basically when the blood supply between the placenta, blood exchange between placenta and uterus and fetus, 3 of them are being compromised. ठीक से blood नहीं पहुंच रहा. ठीक है. Now this is very important that whenever the patient comes to you with pregnancy-induced hypertension and you order a uterine Doppler and you see that अच्छा अब तो confirm हो गया, because the confirmation is made by the marker, that is SND ratio, which should be less than or which should be equals to or greater than 3. Now once it is confirmed, right now as a obs and gynecologist, I have this one motto that this patient, no matter what her gestational age is, I want to make her prepare for the baby by 37 weeks. Termination of pregnancy does not mean that I want to abort the baby. Termination of pregnancy means that I want to carry this pregnancy only at 37 weeks tak hi. At 37 weeks tak I have to induce labor in that patient, because I cannot risk that future में, because that can result in fetal death also. तो मेरा मैक्सिमम कोशिश ये होता है कि मैं 37 वीक्स पे ही पेशेंट की इंड्यूस करवा दूँ. दैट मीन्स 36 पे या 35 पे मैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे दूँगी ताकि लंग मैच्योर हो जाए. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल नाउ व्हाट हैपेंस इन दिस वे कि फॉर एग्जाम्पल नाउ इफ UPI, दैट इज यूट्रोप्लासेंटल इंसफिशिएंसी, और बढ़ती गई, मतलब हाइपरटेंशन और बढ़ता गया और वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर्स बढ़ते गए, प्लासेंटा का रेजिस्टेंस बढ़ता गया, PVR और बढ़ता गया, बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस बढ़ता गया. अब क्या होगा? ये होगा. अब हमारे पास ये दो कंडीशंस आएंगी. हमारे पास पहली कंडीशन आती है एब्सेंट एंड डायस्टोलिक फ्लो. व्हाट हैपेंस इन दिस कंडीशन इज कि पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस, ये सिस्टोल तो सही जा रहा है हमारा, लेकिन डायस्टोल है ही नहीं यहाँ पे. एब्सेंट एंड डायस्टोलिक फ्लो, डायस्टोल D वाला फैक्टर ही गायब हो गया, क्योंकि इतनी ज़्यादा पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ गई कि जो डायस्टोल में ब्लड जा रहा था वो जा ही नहीं रहा.
तो इसका क्या होगा कि यहाँ पे डायस्टोल पोर्शन ही नहीं है हमारे पास, तो इस वेव ग्राफ को हम कहते हैं एब्सेंट एंड डायस्टोलिक फ्लो। एंड अगर मेरे पास ये इमेज देते हैं एग्जाम में, तो आई वांट टू टर्मिनेट प्रेगनेंसी एट 33 to 34 वीक्स पर, इससे ज़्यादा मैं आगे नहीं लेके जाऊँगी, बिकॉज मोर आपके पास हाइपरटेंशन बढ़ जाएगा, मोर आपकी यूट्रोप्लासेंटा इनसफिशिएंसी होगी, मोर फीटल विल बी एट द प्रोग्रेशन ऑफ डेथ पे। देन एक ऐसा टाइम आता है कि पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस इतनी बढ़ जाती है कि ब्लड फ्लो अपोजिट हो जाता है। दैट मीन्स जो ब्लड फ्लो फॉरवर्ड हो रहा था, ये सिस्टोलिक ये डायस्टोलिक था ना, तो अब ये जो ब्लड विच वॉज कमिंग, अब नॉर्मल क्या था, ब्लड वॉज कमिंग फ्रॉम द फीटस टू द प्लासेंटा, ये था हमारे अम्बिलिकल आर्टरी का काम। बट अब ऑपोजिट हो जाएगा, सिस्टोल में ब्लड विल कम फ्रॉम द फीटस टू द प्लासेंटा, बट डायस्टोल में नाउ ब्लड विल गो फ्रॉम द प्लासेंटा टू द फीटस, क्योंकि ये रिवर्स हो जाएगा। इतना ज़्यादा पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ गई कि वो ब्लड बिल्कुल जाने नहीं दे रही थी, तो दैट रिजल्ट्स इन रिवर्स्ड एंड डायस्टोलिक फ्लो। दैट मीन्स हमारा सिस्टोल तो सही है बट डायस्टोल अपोजिट हो गया। एंड नाउ आई वांट टू टर्मिनेट प्रेगनेंसी 30 to 32 वीक्स पे, ठीक है, दैट्स इट, यू हैव टू रिमेंबर दिस। बात खत्म। ओके, नाउ द क्वेश्चन हियर कम्स इज कि हम हमेशा अम्बिलिकल आर्टरी डोपलर ही क्यों करते हैं। वी ट्राई टू डू डोपलर क्योंकि उसके मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिए हैं, एंड देन हम अम्बिलिकल वेन पे करते हैं अगर अम्बिलिकल आर्टरी पॉसिबल नहीं है तो। नाउ what are the indications of doing umbilical artery Doppler? In which conditions we'll be doing umbilical artery Doppler? We'll be doing them सबसे पहले pregnancy induced hypertension, which I've already discussed the case over here. अब ये तीनों related conditions है, यूट्रोप्लासेंटल insufficiency हो, या तो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन हो, या तो फिर इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हो, वी हैव टू डू यूट्राइन आर्टरी डोपलर। मोस्टली दीज थ्री कंडीशंस आर बेसिकली एसोसिएटेड विद ईच अदर। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन में ही यूट्रोप्लासेंटा इनसफिशिएंसी होती है और उसकी वजह से ही IUGR होता है। इन तीनों केसेस में प्लासेंटा विल बी स्मॉलर इन साइज। Now one of the students actually asked me some day before that why are we not doing middle cerebral artery Doppler, मतलब ब्रेन में जो आर्टरी जा रही है मैं उसका कर लूँ, यूट्राइन आर्टरी का क्यों कर रही हूँ। सो सी दैट इज द बिगेस्ट रीजन ये होता है कि हमारे पास मिडिल सेरेब्रल आर्टरी में ब्रेन स्पेरिंग इफेक्ट होता है। इसका क्या मतलब होता है, जैसे हमारी बॉडी में आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू नेचुरली ब्रेन में इफेक्ट होता है ना कि ऑटोनॉमिक सर्कुलेशन होती है, कि नो मैटर व्हाट द ब्लड प्रेशर इज, आपकी बॉडी में आपके ब्रेन में ब्लड प्रेशर मेंटेन रहेगा बिकॉज ऑफ द लोकल इफेक्ट्स, कि हमारे पास लोकल ही उसे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करेंगे। चाहे फॉर एग्जांपल ब्लड प्रेशर किसी का हाइपोटेंशन में जा रहा है, तो वॉल्यूम हाइपोटेंशन शॉक की वजह से भी अगर कोई शॉक में जा रहा है तब भी उसका ब्रेन पूरी कोशिश करेगा कि नॉर्मल ब्लड सप्लाई दे और अपना प्रेशर मेंटेन रखे बिकॉज ऑफ द लोकल मेंटेनेंस। सिमिलरली दैट ब्रेन स्पेरिंग इफेक्ट जो है ना वो हमेशा मिडिल सेरेब्रल आर्टरी में होता है कि नो मैटर व्हाट द ब्लड सप्लाई टू द फीटस इज गोइंग, आई डू नॉट केयर, मुझे एक प्रोपोर्शन ऑफ द ब्लड चाहिए टू द ब्रेन गोइंग, चाहे पेशेंट शॉक में जाए चाहे पेशेंट हाइपरटेंसिव क्राइसिस में जाए। बिकॉज ऑफ दिस हमारे पास यूट्रोप्लासेंटल इनसफिशिएंसी में MCA जो ब्लड फ्लो हमारे पास जो MCA की जो डोपलर इफेक्ट आएगा वो नॉर्मल आएगा, ठीक है। अच्छा, कब करूँगी फिर मिडिल सेरेब्रल आर्टरी डोपलर? मिडिल सेरेब्रल आर्टरी डोपलर विल बी डन बाय इन द कंडीशन व्हेन देयर इज फीटल एनीमिया। फॉर एग्जाम्पल द कंडीशंस दैट इंडिकेट कि फीटल अनीमिया हो सकता है पेशेंट को आर कि मदर इज अफेक्टेड बाय पार्वोवायरस B19 इन्फेक्शन बिकॉज दैट रिजल्ट इनटू एप्लास्टिक अनीमिया, तो फीटल अनीमिया हो सकता है, पहली कंडीशन। दूसरी, ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन अनीमिया हो सकता है, क्यों? क्योंकि ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिस्टम में जो डोनर होता है, एक बेबी हमेशा ब्लड उसका डोनेट हो जाता है और एक बेबी में हमेशा पॉलीसिथीमिया होता है ना। दूसरा बेबी जो कंडीशन है थर्ड इज RH आइसो इम्यूनाइज्ड प्रेगनेंसी, उसमें भी हमारे पास फीटल एनीमिया का चांस होता है। फीटल एनीमिया में बिकॉज ऑफ द हाइपर डायनेमिक सर्कुलेशन हमारे पास व्हाट हैपेंस कि पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी ऑफ बाय MCA हमें चेक करनी होती है कि वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1.5 मिलीमोल हो। मतलब ये देखो MOM, ये जो है ना आपको पेपर में यही आएगा कि ये पिक्चर है, ठीक है, दिस इज योर MOM कंडीशन, तो ये आपके पास 1.5 MOM से भरा हुआ होना चाहिए, दैट्स इट। तो दैट मीन्स कि सिग्निफिकेंट फीटल अनीमिया है एंड फीटल हार्ट फेलियर के चांसेस हैं। तो व्हाट इज अ मार्कर ऑफ, please tell me what is the marker of uteroplacental insufficiency or what is the marker of pregnancy induced hypertension? So that is your SD ratio greater than or equals to 3. Now what is the marker of your fetal anemia? That is your peak systolic velocity in middle cerebral artery Doppler greater than or equals to 1.5 MOM. Are we done over here?
So thank you so much, people. Then there are conditions, there is this condition in which we have this single umbilical artery. अब क्या होता है कि एक पेशेंट होता है हमारे पास